Hello, Namaskar, Khammagani people. My name is Nandita Sudha Tiwari and welcome back to our channel, that is Professor Tiwari. In our last lecture, we started chapter Thermodynamics from class 11th Physics Syllabus, and today we will going to move ahead and start a new topic. So today's new topic is thermodynamic state variables. Thermodynamic state variables. I have already mentioned this topic in the last lecture, in our first lecture actually. In our last lecture we talked about triple point, critical point and the curve. But in the first lecture of thermodynamics, I have already mentioned in a very simple language that what is thermodynamic state variables. But today we will going to study them in little detail. Okay, so as the name suggests, thermodynamic state variables, first we need to understand that what's the word or what's the topic heading is conveying you or saying you. As I said, thermodynamic state variables means something which changes, which is not constant forever. Okay, and state, as I mentioned in the first lecture, here state means that the system's nature or behavior. State का मतलब अगर आप डायरेक्ट लें तो यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं आपके किसी सिस्टम का नेचर या फिर बिहेवियर. ओके, nature or behavior. But in thermodynamics we use a more jargon term, and that's the reason we use the word state. Okay, when I say thermodynamics, we have already understood its very basic definition, that when we study thermodynamics, it has everything to do with heat, temperature. Okay, simply heat in motion. Okay, so thermodynamic state variables, what does this term mean? Thermodynamic state variable means, for example, if you want to introduce yourself or if you want to introduce your friend, what you do, if somebody asks you what's your nature, what kind of a nature you have or you possess, so you basically tell that person your traits, your qualities. आप अपने traits बताते हैं या अपनी qualities बताते हैं, उससे पता लगता है कि आपका nature कैसा है. वैसे ही अगर कोई thermodynamical system है तो उनका nature या behavior बताने के लिए हमें उस system की हमें कुछ variables बताने पड़ते हैं, कुछ qualities बतानी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था. आप सिंपल समझ लीजिए, जैसे कि ये जो है ये कोई आपका जो है सिस्टम है, ये आपका सिलेंडर भी हो सकता है, ये आपका कंटेनर भी हो सकता है, एनक्लोज्ड सिस्टम है, बंद सिस्टम है, और इसमें अगर आपके गैसेस हैं, ठीक है, मैटर की कोई भी फॉर्म हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन ईदर बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और मिक्सचर ऑफ गैसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू. ठीक है, तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं ये एक एनक्लोज्ड बॉक्स है या कंटेनर है और इसके अंदर ये एक गैस जो है वो एनक्लोज्ड है. तो ये क्या कहलाएगी? बेसिकली दिस विल बी अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कहलाएगा. ठीक है, अब ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का आपको क्या बताना है? स्टेट बतानी. यू नीड टू टेल व्हाट्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब नेचर या बिहेवियर बताना है. तो आप किस तरीके से बताएंगे? इन्हें बताने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स यूज करने पड़ते हैं. एंड व्हाट आर दीज वेरिएबल्स? एज एन एग्जांपल, द वेरिएबल्स आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, composition. Okay, composition. What else? It can be internal energy, it can be entropy, or it can be density as well. Density भी हो सकती है. तो मतलब एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं. बट अभी आप जो क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ेंगे उसमें बेसिकली ये वेरिएबल्स आप पढ़ते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, if you need to understand the nature state of a thermodynamical system, it is very important for you to know these basic things. ये basic variables आपको पता होना चाहिए. ये तो जर्नल चीज़ थी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी समझ रही थी, बट इस लेक्चर में हम देखिए क्या समझ रहे हैं. एज आई सेड, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स हैव वन कैटेगरी. इन वेरिएबल्स की एक कैटेगरी है. लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वट एवर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वी स्टडी, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू two categories, or they follow two approaches. Either they will be of either they will follow microscopic approach or they will going to follow the macroscopic approach. हम जो classical thermodynamics 11th के syllabus में पढ़ते हैं ये follow करती है macroscopic approach. So what is macroscopic approach? Macroscopic approach where
इन अ सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन एनी मैटर, आप कोई भी गैस ले सकते हैं, आप कोई भी सॉलिड, लिक्विड या किसी का मिक्सचर ले सकते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर मैटर की ये जो सरफेस लेवल पे ये जो आप चीजें निकालते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी, एंट्रोपी, ये सब चीजें सरफेस लेवल पे ही पता लग जाती है। यू डोंट डिग इनसाइड द मैटर, मतलब मैटर किस चीज से बना होता है, मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से बना होता है, तो आप माइक्रो लेवल पे नहीं जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो साइंस फॉलो करेगी, जो फिजिक्स फॉलो करेगी, वहां पे वो पार्टिकल के लेवल के ऊपर, मतलब आपका जो पूरा मैटर जिन पार्टिकल से बना होगा वो पार्टिकल पे जाके उस चीज को स्टडी करती है। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है, ये कहलाते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। ठीक है, हम इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कहते हैं। अगर ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो कर रहे होते तो सिंपल क्या है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए, कि आप मैटर के पार्टिकल लेवल तक जाएंगे, जो भी पार्टिकल से वो मैटर बना हुआ है उनके पार्टिकल लेवल तक जाएंगे, और पार्टिकल लेवल पे जाने के बाद किस चीज की आप स्टडी करेंगे? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज की। और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, इन द फर्स्ट लेक्चर, क्या होती है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज? ये होती हैं वेलोसिटी होती है, उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है, और मोमेंटम हो, मतलब बहुत सारी होती हैं, बट बेसिक जो है ये होती हैं। तो मतलब आप एक मैटर लिया, आपने उनके पार्टिकल लेवल पे गए आप, और आपने ये चीज़ें उन पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करी, मोमेंटम फाइंड करा, तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हो गई। बट यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के नेचर के होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स जब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। क्या होती हैं ये? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं। तो पहला वर्ड तो आपको इनका नेचर से पता लग गया। आगे डेफिनेशन में देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं, और ये सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो होता है उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करती है। व्हाट आई एम सेइंग इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर मैक्रोस्कोपिक, मैं इसको वापस डेफिनेशन लिख देती हूं प्रॉपर तरीके से। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर मैक्रोस्कोपिक quantities describe thermodynamic state variables are macroscopic quantities। ये तो इनकी आइडेंटिटी है। व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जो हैं वो बेसिकली आइडेंटिटी है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स के। होते किस तरीके हैं? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं जो क्या डिस्क्राइब करती है? डिस्क्राइब द thermodynamic इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये इनकी सब, मतलब जो मेन डेफिनेशन जो हम कहते हैं, एक टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह की डेफिनेशन मिलेगी, वो है। क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो तो समझ में आ गया होगा कि क्या काम है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स का, बट समझना आपको किस तरीके से है कि पहली लाइन में यू नीड टू डिफाइन कि ये किस तरह के नेचर के होते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स जो हैं हमारे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, ये किस तरह के नेचर के होते हैं? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होती हैं। और इनका काम क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर? ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक्स उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकती है जो इक्विलिब्रियम में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नीड टू राइट थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स डेफिनेशन, देन दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है, और दूसरा ये इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एज आई सेड लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें बताया गया है कि अगर आपका एक सिस्टम है और उनके ये सारे जो वेरिएबल्स जो एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं, अगर ये वेरिएबल्स टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम था
थोड़े टाइम पे तो उनका प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर वगैरह जो है वेरी कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वेरी कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह उनका वेरी कर सकते हैं, बट एक टाइम के बाद में ये वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब अब ये टाइम 1 घंटे बाद भी इनकी वैल्यू सेम रहेगी, 2 घंटे बाद भी इनकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो यहाँ पे जरूरी यही है, जब तक आप अपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके नहीं आते, जब तक आप मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यूज ही नहीं कर सकते, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स डिफाइन ही नहीं करेंगे आपके सिस्टम को। तो अगर आपका सिस्टम, फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग दी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। आपको पहले इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम को डिफाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से देयर इज वन पर्सन, और उनका नेचर अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला है, आप इजीली बता देंगे कि फनी है, स्टूडियस है, वाइस है, मैच्योर है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट जो भी है। बट अगर उनका ये नेचर आप तभी बता सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इन चीज़ों से तभी डिफाइन होगी जब उनके ये सारे वेरिएबल्स, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो टाइम के साथ में चेंज ना हो। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल वो अभी इंट्रोवर्ट हैं और वो कुछ टाइम बाद में एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, या शाय हैं, या बहुत बोल्ड हो जाते हैं, इफ दीज थिंग्स आर गेटिंग वेरी, अगर ये क्वालिटीज वेरी हो रही हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटी ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते। सेम चीज़ यहाँ होती है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, कि पहले आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाएंगे कि जिससे कि उनकी क्वालिटीज चेंज नहीं हो, फिर आप वो जो वेरिएबल्स हैं उनको देखते हैं सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, ओके, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, आपकी बहुत सारी होती हैं चीज़ें, तो डेंसिटी हो गई। तो ये सारे इनके क्या हैं, एग्जाम्पल है। और इक्विलिब्रियम में होना कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब आप ये वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम है एक पॉइंट के ऊपर, तो ये कोई भी सिस्टम में मान लीजिए गैस है, आपने गैस ले रखी है सिस्टम के अंदर, तो ये वेरिएबल्स के थ्रू आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपको कंडीशन पता लगेगी आपके सिस्टम की, कि आपके सिस्टम की अभी क्या कंडीशन है, वो इन वेरिएबल्स के थ्रू ही आपको पता लगती है। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कि इसका एक और एग्जाम्पल, जिससे कि डेफिनेशन के साथ में और भी अच्छे से ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, कि मान लेते हैं ये एक आपका कंटेनर है, ठीक है, दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है, और यहां मैंने इस कंटेनर के सेंटर में कहीं पार्टीशन यूज कर लिया, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पार्टीशन, ओके। और यहां इस साइड पे जो है ये कुछ आपकी गैसेस हैं, क्या है ये, इधर आपकी कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आपने कोई भी गैस ले ली है, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, क्या करा है, एक कंटेनर है, उसमें हमने गैस जो है ले ली है, और ये बीच में हमने पार्टीशन जो है इसके अंदर लगा दिया है। नाउ व्हाट विल गोइंग टू हैपन, इफ फॉर एग्जांपल मैं सेम कंटेनर ले रही हूँ, यही कंटेनर है, यही गैस है, यही कंटेनर है, यही गैस है, और लेट जस्ट से मैंने ये पार्टीशन की पोजीशन चेंज कर दी है, और ये पार्टीशन जो है अब यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर मैं ये पार्टीशन के यहाँ पे होने से, व्हाट दिस पार्टीशन इज डूइंग ओवर हियर, दिस पार्टीशन इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टिंग दिस गैस, ये इस गैस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बाउंड कर रहा है, कॉन्स्ट्रेंट है ये एक तरीके का, मतलब लिमिट कर रहा है। इस कारण से गैस जो है वो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एनक्लोज्ड है या कैद है। जैसे ही मैं ये पार्टीशन को अगर थोड़ा उधर मूव करूंगी, तो आपकी गैस क्या होगी, फ्रीली एक्सपेंड करेगी, फैल जाएगी। सो लेट जस्ट से ये आपकी गैस पार्टीशन को मूव करते ही इस तरह से क्या हो गई, एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी गैस जो है एक्सपेंड हो गई, फैल गई। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन, क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा देखिए, इसके अंदर ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं ये आपका कोई, लेट जस्ट से देयर इज दिस सिलेंडर, यहां पे ये आपका कोई सिलेंडर है, ठीक है, और ये आपकी इसमें सेकंड कंडीशन के अंदर जो है गैस यहाँ पे हमने लगा दी है, दिस इज गैस ओवर हियर, और यहाँ हम मान लेते हैं कि ये जो है इससे यहाँ पे इस तरह से कंप्रेस किया जा रहा है। मतलब एक समझने के लिए है कि गैस है,
क्लोज्ड है अगर अगेन एक कंटेनर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, और यहां से इन्हें कंप्रेस किया जा रहा है, मतलब दबाया जा रहा है। यहां तो क्या कर रहा है, जैसे ही पार्टीशन आपने शिफ्ट करा, गैस फ्रीली एक्सपेंड हो गई, एक्सपेंशन हो गया। यहां क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो अगेन गैस क्या होगी, प्रेस होगी। तो यहां इन दोनों केसेस से, ये जो दो डायग्राम है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट बोथ ऑफ दीज सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, दिस इज द सेकंड सिस्टम, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम के अंदर? बिकॉज देखिए, अगर मैं ये पार्टीशन को हिलाती हूं तो ऑफकोर्स गैस एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंड करेगी तो उनके प्रेशर में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में भी चेंज, प्रेशर में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वेरिएबल्स चेंज हो गए। यहां अगर मैं गैस को कंटिन्यूसली कंप्रेस करती जा रही हूं, अगेन प्रेशर में भी चेंज आएगा और वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। सो दैट्स द रीजन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो यू हैव टू फर्स्ट ब्रिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, those thermodynamic state variables are capable only on that condition. If the system is in equilibrium, only on that condition thermodynamic state variables can define the system. ठीक है, यहां पे देखिए, जब आप कंप्रेस करते हैं, अगर ये गैस का कोई मिक्सचर है, तो इनमें कंप्रेशन के कारण एक और जो सिंपल सी चीज होती है, क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन होता है। वो तो आप सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें वैसे ये चीज बताई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। जब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स की, किसकी? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स की, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। पहला इनका टाइप है हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। फर्स्ट टाइप क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। और जो इनका दूसरा टाइप है वो है इंटेंसिव variables. दो types extensive and intensive variables. Now you need to understand that what's the difference between the extensive and the intensive variables. When I talk about the extensive variables, then they are size dependent. They are what? They are size dependent. Extensive variables जो होते हैं वो क्या होते हैं? Size dependent होते हैं. When I say size dependent, then size किसका? Of course thermodynamical system का. So when I say size, extensive variables are size dependent, that means I am talking about the mass of the system. And when I say mass of the system, then I am talking about the number of particles that system has. क्या कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव वेरिएबल्स सिस्टम के साइज पे डिपेंड करते हैं, और साइज का मतलब सिस्टम के मास पे डिपेंड करेंगे, और मास का मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये तो साइज डिपेंडेंट हो गए। तो इनका एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के एग्जांपल क्या होते हैं? सिंपल, इनके एग्जांपल हो जाएगा मास हो गया, वॉल्यूम इनका एक एग्जांपल जो है वॉल्यूम हो सकती है इनका एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटेंसिव वेरिएबल्स के एग्जांपल क्या हो जाते हैं? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गई, यहाँ पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप एक इंटरनल एनर्जी भी ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी होती हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स तो होते हैं साइज डिपेंडेंट, जो कि सिस्टम के साइज पे डिपेंड करते हैं। अगर सिस्टम का साइज चेंज होगा तो इनमें भी चेंज आएगा। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं, दे आर नॉट साइज डिपेंडेंट, नॉट साइज डिपेंडेंट, नॉट साइज डिपेंडेंट। ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते। आप सिस्टम का साइज में कितने भी वेरिएशंस लेके आ जाएं, ये इनके जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर जो है, दो इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसमें आप एक और चीज देखिए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेंसिव वेरिएबल ऑलवेज गिव मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एज कंपेयर टू एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स हमेशा आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की एज कंपेयर टू एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इनसे आपको इंफॉर्मेशन लिमिटेड मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, एक इनका रीजन ये होता है कि जो मास वॉल्यूम जो होती है वो एक पॉइंट के बाद में कांस्टेंट रहेगा, उसमें इतने नहीं आते हैं चेंजेस। वो आप डिटेल के अंदर अपन आगे जब चैप्टर में चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने कहा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं ये आपका एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और इसके अंदर ये कोई गैस होगी।
ठीक है, ये कोई गैस है आपकी, और ये जो सिस्टम है, क्योंकि मैं वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ तो सिस्टम को कैसा होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। तो ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अगर मैं ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, इस इक्विलिब्रियम वाले थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो फिर क्या होगा, आपको वेरिएबल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट होगा वेरिएबल्स पे, वो बताना है। सो दिस सिस्टम वाज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट यू नीड टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट योर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, पार्टीशन करके दो इक्वल पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया, तो वेरिएबल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए कि जो आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल्स थे, मास, वॉल्यूम वगैरह, ये जो आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल्स थे, मास, वॉल्यूम, ये सब तो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, हाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरे सिस्टम का मास लेट जस्ट से 2 kg, जर्नल बता रही हूँ, अगर 2 kg होगा तो ये इसका आपने अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये 2 kg जो है डिवाइड हो जाएगा, 1-1 दोनों तरफ हो जाएगा। सेम गोज फॉर वॉल्यूम, क्योंकि साइज पे डिपेंडेंट है, साइज आधा हुआ तो ये और डिवाइड हो जाएंगे, 3 बार आप पार्टीशन कर देंगे और डिवाइड हो जाएंगे। जितना ज़्यादा साइज रिड्यूस या इंक्रीज होगा उतना ही इनमें चेंज आता रहेगा प्रोपोर्शनली, ठीक है। इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से थे आपके, प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके अंदर चेंज, क्योंकि आपका अगर ये पूरे सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में था, अगर इनका पहले टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था, पहले टेम्परेचर अगर इस पूरे सिस्टम का 30 डिग्री सेल्सियस था, तो आप इसके चाहे 1000 पार्टीशंस कर दें, 1000 इनको डिवाइड कर दें सिस्टम को, तो भी इनका टेम्परेचर हर जो आपका डिवीजन होगा, जैसे ये अगर पहले पूरे सिस्टम का 30 डिग्री सेल्सियस था तो ये इंडिविजुअली भी 30 ही रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, इंडिविजुअली भी 30 रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर बेसिकली साइज डिपेंडेंट, they do get change with the size of the system, and while the intensive variables are not size dependent, they do not get change with the change in the size of the system, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास में हो गया। अब दूसरा एक टॉपिक है, वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट, छोटा सा टॉपिक है, सो वी नीड टू डू इट फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ state, okay, equation of state, equation of state. Again, by the heading of the topic, what do you understand by equation of state? से आपको क्या समझ में आता है। equation of state मतलब equation वर्ड आते ही मतलब यहाँ पे कुछ आपके कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं और मैथमेटिकली मतलब अरेंज होंगे। इक्वेशन वर्ड से आपको यही समझ में आता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है या एक्सप्रेशन होगा जिनका आपस में कुछ ना कुछ लेना देना होगा और वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे। और स्टेट मतलब कि आपके सिस्टम के नेचर की या सिस्टम के बिहेवियर की एक इक्वेशन बनाई गई है। क्या होती है, आइडियल गैस के एक हम जर्नल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो लेते हैं, मैं पहले वो बता देती हूँ। जर्नल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हम लेते हैं वो लेते हैं PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। व्हाट इट इज, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। P is for pressure, V is for volume, mu is number of moles, number of moles। आपके अगर सिस्टम में गैस है तो उनके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये तो वो हो जाती है R is गैस कांस्टेंट, R क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट, एंड यू नो कि टेम्परेचर T इज टेम्परेचर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर गैसेस भी दो तरीके की होती है, आइडल एंड रियल गैसेस। आइडल और रियल गैसेस में क्या डिफरेंस है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, वी कैन नॉट डू इट आज के लेक्चर में, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि आइडियल गैस, आपको ये आइडियल गैस के उससे सिर्फ ये ध्यान रखना है, बेसिकली दे आर हाइपोथेटिकल, ओरिजिनलिटी में रियलिटी में वी डोंट फाइंड इट इन आवर रेगुलर लाइफ, ठीक है। तो एक हमने सिर्फ इक्वेशन देखी है
कि आइडल गैस है PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, म्यू आपका कांस्टेंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली अगर आपका कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, वो सिस्टम का मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आर विल बी कांस्टेंट बिकॉज आर इज द गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स रहेगा। म्यू जो आपका नंबर ऑफ मोल्स या मास जो भी आप कहते हैं, ये आपको प्री डिटरमाइंड होता है। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप जो मैटर ले रहे हैं उसका मास आपको पहले से पता होता है, आपने कितना लेना है, उसी हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटीज तो क्या है, कांस्टेंट है। वाइल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे आर व्हाट, दे आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे आर व्हाट, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम आइडियल गैस का केस कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर या तो आपका पेयरिंग किस तरह से हो सकती है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होंगे। सिस्टम के अंदर या तो प्रेशर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट चलेंगे या टेम्परेचर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट चलेंगे। इन्हें हम डिटेल के अंदर पूरा आइडियल और रियल गैसेस का डिफरेंस समझ के और फिर वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये होते हैं। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इक्वेशन ऑफ अ स्टेट क्या है, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ मोल्स दिखाता है, और R इज गैस कांस्टेंट। ये एक चीज हो गई। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट से आपको क्या समझ में आ रहा है, इक्वेशन ऑफ स्टेट बेसिकली डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स हैं, PV और T क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन ये इक्वेशन ऑफ स्टेट करती है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, ये तो हमने एक बात कर ली आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं होती। रियल गैस की जो इक्वेशन आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ड्रामेटिक टाइप होती है। वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे उसकी। अब देखिए एक चीज, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ इफ़ यू स्टडी एनी टॉपिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जान लें कि उनकी एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको पता ही नहीं और आप पढ़े जा रहे हैं सो इट जस्ट कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम का वेस्टेज है वो। तो ज़रूरी क्या है, यू शुड नो दैट व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस, why we are studying thermodynamics, why we are studying all these topics, what's the utilization. So equation of state हम इसलिए पढ़ते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है, ये बेसिकली क्या बताती है, properties of fluids। ये क्या बताती है, properties of fluids। fluids क्या होते हैं, गैस और लिक्विड्स आपके फ्लूइड्स हैं। तो अगर आपका सिस्टम जो है, अगर आपका थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो है वो लिक्विड या गैस का मिक्सचर हो या सिंपल गैस और लिक्विड भी हो, तो उन फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज बताने के लिए आपको ये इक्वेशन ऑफ स्टेट की स्टडी करनी ज़रूरी होती है। उसके अलावा ये सॉलिड की भी आपको प्रॉपर्टीज बताएगी, क्योंकि सॉलिड भी मैटर है। तो ये आपको एक तो चीज़ क्या बता रही है, ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपको बताती हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये आपको बताती है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, वो है इट ऑल्सो गिव यू एक्सप्लेनेशन और इट ऑल्सो टेल्स यू दैट व्हाट्स इनसाइड द स्टार। जो स्टार्स होते हैं उनके इंटीरियर के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या काम हो रहा है, वो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट से ही पता लगता है। ये से नहीं, ये तो एक आइडियल गैस की है। इक्वेशन ऑफ स्टेट कॉस्मोलॉजी में मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, इंटीरियर ऑफ स्टार्स के इंटीरियर में क्या काम हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द स्टार, उसके लिए भी आपको स्टार के लिए जो आप पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़नी पड़ती है। मगर यहाँ पे तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये आइडियल गैस की एक इक्वेशन ले ली, या रियल गैस की पढ़ेंगे तो उनकी इक्वेशन ले लेंगे। यहाँ अगर आपको स्टार्स के इंटीरियर्स के बारे में पढ़ना है, दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी इक्वेशन ऑफ स्टेट। और यहां पे वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सी होती है, कॉस्मोलॉजी की। कौन सी होती है, कॉस्मोलॉजी की। ये आपके उसमें नहीं है, इट्स नॉट इन द सिलेबस, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट कहाँ पे ये काम में आती है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। उनमें से मेजर एप्लीकेशन जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स में है, कॉस्मोलॉजी में है, स्टार्स के इंटीरियर को पढ़ने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वैसे इक्वेशन इस तरह से होती है, W इक्वल्स टू P बाय रो, दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट, बट इनका
काम जो है वो कुछ हद तक एक जैसा सही होता है. आप चाहें तो जाके डिटेल में इस चीज़ को देख सकते हैं. अदरवाइज वी विल डेफिनेटली गोइंग टू डू अ सीरीज ऑन एस्ट्रोफिजिक्स वेयर वी विल गोइंग टू टेक वेयर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टार्स. जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स इसका एक एग्जाम्पल हो गया. न्यूट्रॉन स्टार्स, उनका स्पिन बहुत फास्ट होता है. आप जाके डिटेल के अंदर से देख सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In our next lecture, we will going to talk about that what is ideal gas, what is real gas, and what's the difference between them. We will also going to talk about the different equations that real and ideal gas possess, and it will be in detail. So thank you for watching the video, and one more thing, thank you for liking Thermodynamics first video. It has crossed 1K views. Thank you so much for the support, and if you like the lecture, then please hit the bell icon, subscribe to the channel, like and share. Thank you. Khamagari.